شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پہلو خان ہجومی تشدد معاملے میں راجستھان ہائی کورٹ نے پہلو خان اور ان کے بیٹے ارشاد اور ڈرائیور خان محمد کے خلاف درج FIR رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پولیس اس معاملے کو گائے کی اسمگلنگ ثابت نہیں کر پائی، اسی لیے FIR رد کرنے کا حکم دیا گیا۔ دراصل پولیس نے پہلو خان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قتل کا کیس درج تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی پہلو خان، ان کے بیٹے اور پک اپ ڈرائیور کے خلاف گائے کی اسمگلنگ کا معاملہ بھی درج کیا گیا تھا۔ پولیس اس معاملے میں چارج شیٹ بھی داخل کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ سال 2017 میں بھیڑ نے گائے کی اسمگلنگ کے شک میں پہلو خان کو پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ 1 اپریل 2017 کو ہریانہ کے ضلع میوات کے نوح کے رہنے والے پہلو خان جے پور سے 2 گائے خرید کر اپنے گھر لے جا رہے تھے، تبھی راستے میں بھیڑ نے گاڑی کو روک کر پہلو خان اور ان کے بیٹوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ علاج کے دوران اسپتال میں پہلو خان کی موت ہو گئی۔ خاص بات یہ رہی کہ مقامی عدالت پہلو خان نے قاتلوں کو ثبوت کی کمی اور ویڈیو کو ناکافی مانتے ہوئے پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے لٹکا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا میڈیکل پروجیکٹ کا جلد ہی شرمندہ تعبیر خواب ہونے والا ہے۔ آج جامعہ کے کنوکیشن میں جامعہ میڈیکل کا مدعا خوب گونجا اور اس مدعے پر مہمان خصوصی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال نشنک نے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ خاص رپورٹ۔ 1920 میں قائم ہوا جامعہ ملیہ اسلامیہ آج اپنے 100ویں سال میں داخل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر اسپیشل کانوکیشن ہوا جس میں 10,000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ پروگرام میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، HRD منسٹر رمیش پوکھریال نشنک کے علاوہ چانسلر نظمہ ہبت اللہ اور وائس چانسلر نجمہ اختر بھی شامل ہوئیں۔ آپ سبھی کے بیچ یہاں آ کر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ میں خاص طور سے یہاں بیٹھی سبھی بیٹیوں کو تہہ دل سے مبارکباد اور دعائیں دیتا ہوں، جنہوں نے دونوں ہی سال لڑکوں سے زیادہ گولڈ میڈل حاصل کیے۔ ان قابل اور ہونہار بیٹیوں میں سماج اور دیش کے آنے والے کل کی سنہری تصویر دکھائی پڑتی ہے۔ یہ بہت اہم اتفاق ہے کہ جامعہ کے لگ بھگ 100 سال کے اتہاس میں پہلی بار مہیلا چانسلر اور وائس چانسلر دونوں نیوکت ہوئی ہیں۔ اپنا رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہوئے وائس چانسلر نجمہ اختر نے ملک کے لیے قربانی کے سلسلے میں جامعہ کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہ جامعہ کے میڈیکل پروجیکٹ کے لیے مدد کرے، جبکہ جامعہ کی چانسلر نجمہ ہبت اللہ نے کہا کہ اب خواب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ میرا جامعہ سے دلی رشتہ ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جو میرے دادا تھے، انہیں جامعہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اب ایک A گریڈ سینٹرل یونیورسٹی ہے جسے نیک کے ذریعے منظوری حاصل ہے۔ اس میں مختلف سطحوں پر کئی تعلیمی کورسز کی پیشکش کی جاتی ہے۔ جامعہ ٹیچنگ اور ریسرچ کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری مانا جاتا ہے، اور جو تعلیم میں انوویشن لانے اور انٹرنیشنل اسٹڈیز اور ڈسپلنری اسٹڈیز میں انٹرڈسپلنری اسٹڈیز میں سیکولرزم بین الاقوامی تفہیم کے اس کے مقاصد کو آگے بڑھاتی ہے۔ جامعہ بھارت کے شیرش انسٹیٹیوشن میں گنا جاتا ہے اور وشو میں بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی نرنتر پریتنشیل بھی ہے۔ ہم آنے والے برسوں میں انیک جاب اورینٹڈ اور انٹرنیشنلی ریلیونٹ کورسز شروع کرنے والے ہیں، جن میں سے کچھ شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرچ کولابریشنز کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور فورن سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ جامعہ کا ریزیڈینشل IAS کوچنگ اکیڈمی ایک بہت شاندار پرفارمنس دے رہا ہے اور سرکار کے بھروسے پہ پورا اتر رہا ہے۔ اب تک تقریباً 150 اسٹوڈنٹس کا UPSC کے تھرو سول سروسز میں سلیکشن ہو چکا ہے۔
इस मौके पर HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यकीन दिलाया कि वो इस प्रोजेक्ट के तहत हर तरह की मदद करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम शीर्ष नेताओं ने इस देश की प्रगति की दिशा में इसका जो नींव रखा था, आज जिस वृक्ष को उन्होंने रोपित किया था, आज वो बट वृक्ष के रूप में विशाल काय बनकर के आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं जामिया पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कई दहाइयों से जामिया मिलिया इस्लामिया मेडिकल कॉलेज का ख्वाब संजोए हुए है और ये यूपी इरिगेशन की 210 बीघा जमीन पर ही शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। जामिया ने इस जमीन के लिए 10% पैसे दे दिए हैं और ये जमीन हाइड्रोग्राफ होना बाकी है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया आज भी मुल्क की खिदमत में पेश है। मुल्क को यहाँ से वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे सदर जमहूरिया और बड़ी तादाद में इंजीनियर और 150 से ज्यादा सिविल सर्वेंट दिए हैं। और अब मुल्क की सेहत सुधारने के लिए ये यूनिवर्सिटी काम करना चाहती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। भोपाल कमेटी औकाफ आमा की स्कीम आप पढ़िए फीस हम भरेंगे तनाज़े का शिकार हो गई है। समाजी तंजीमें जहां इसकी शफाफियत को लेकर सवाल उठा रही हैं, वहीं उन्होंने साबिका हुकूमत में तकसीम की गई स्कॉलरशिप की जांच कराने का भी पुरजोर मुतालबा किया है। खास रिपोर्ट। भोपाल कमेटी औकाफ आमा के जरिए तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाने का काम पहले भी किया जाता रहा है। पहले कमेटी के जरिए अपने ही चहीते लोगों को स्कॉलरशिप दिए जाने का काम किया जाता रहा। पहले इसके लिए न तो किसी किस्म का फॉर्म जारी किया जाता था और न ही रकम बताई जाती थी कि किन लोगों को कितनी रकम तकसीम की गई है। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 के जरिए खबर भी नश्र की गई थी और जिसका नतीजा है कि नई कमेटी ने आने के बाद स्कॉलरशिप के लिए न सिर्फ फॉर्म जारी किया बल्कि इसके बजट का भी बाकायदा ऐलान किया और आप पढ़ें फीस हम भरेंगे का नारा भी दिया गया। लेकिन समाजी तंजीमें कमेटी औकाफ आमा के मुंतज़मीन के इतने ही इक़दाम से मुतमईन नहीं हैं, बल्कि इस मामले में साबिका कमेटी के जरिए तकसीम की गई स्कॉलरशिप की जांच का भी मुतालबा कर रही हैं। क्या कहती हैं ये मुस्लिम तंजीमें, आप भी सुनिए। देखिए, बहुत अच्छा उनका एक इनिशिएटिव है कि तुम पढ़ो हम फीस भरें, मगर इसके अंदर देखा गया है कि जिस तरीके से अभी अपन लोग भी बात कर रहे थे कि वो लोग भी आके इसके अंदर गरीब लोगों के लिए इमदाद के पैसे होते हैं ले आते हैं जो बहुत साहिब हैसियत लोग हैं। वो पिछली बारों में भी ऐसा हुआ है, तो उनकी बिल्कुल जांच कराना चाहिए और जो साहिब हैसियत लोग चाहे वो कोई भी हों जिन्होंने इमदाद ली उनसे पैसे वापस लेना चाहिए और जो हकदार लोग हैं उनको इमदाद करना चाहिए, जिससे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं तबके के लोग हैं वो पढ़ लिख सकें और उनका भला हो सके। कि अब तक जो होता आया है कम से कम उस पर रोक लगे या पिछली स्कॉलरशिप में जो धांधलियाँ हुई हैं उनकी एक जांच भी हो और उन लोगों को एक तरह से सज़ा भी दी जाना चाहिए कि आइंदा में इस तरह का फर्जीवाड़ा ना हो सके। शिवराज हुकूमत में औकाफ आमा स्कॉलरशिप में की गई मनमानी की जांच को लेकर कमेटी ने क्या कदम उठाया और स्कॉलरशिप की रकम मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जब इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 ने कमेटी औकाफ आमा के चेयरमैन अब्दुल मुगनी खान से बात की तो उन्होंने साबिका मामलात को छोड़ने की बात करते हुए अपने अहद के कामों पर फोकस करने की बात कह डाली। उनका कहना है कि उनकी कोशिश तो यही है कि माली मुश्किलात के सबब कोई भी तालिब इल्म तालीम की रोशनी से महरूम ना हो। देखिए, बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए तो हमारा मोटो है कि आप पढ़िए, फ़ीस हम भरेंगे इंशाल्लाह। और इस साल जितने भी मुस्तहिकीन की दरख्वास्तें आई थी हमने सब की जांच कराई और मंजूर करी और इस साल हमने 15 लाख रुपए का बजट रखा था जो उसको हमने अभी कल परसों में या 3-4 दिन के अंदर ही बांटना है। अब साहब पहले क्या होता था, इसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये एक बहस भी हो जाएगी और एक मतलब पॉलिटिकल बात हो जाएगी, तो वो अपन को खिदमत करना है और अपन को बच्चों का देखना है कि बच्चे पढ़ें। वहीं समाजी तंजीमों का कहना है कि कमेटी साबिका अहद की फाइल को बंद करके बदउनवानी करने वालों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जिसे वो किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे और इस मामले को लेकर वो वजीर अक़लियती फलाह व बहबूद और सीएम से भी मुलाकात करेंगे ताकि औकाफ के फंड का सही इस्तेमाल हो सके और बदउनवानी करने वाले
कैफरे किरदार तक पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल की 4 रोज़ा आलमी इज्तिमा की तैयारियों को लेकर सीएम कमलनाथ ने जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में सीएम कमलनाथ के अलावा वज़ीर अक़लियती फलाह व बहबूद, मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला, वज़ीर शहरी तरक्यात और दूसरी काबीना वज़रा ने शिरकत की और आलमी इज्तिमा की तैयारियों पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला कमलनाथ ने अफसरान को इज्तिमा की तैयारियों में तेज़ी लाने के साथ साथ भोपाल DRM को खुसूसी ट्रेन चलाने की भी हिदायत दी। सीएम साहब के आदेश अनुसार मैं 1-2 महीने से कई मरतबा वहाँ पे दौरा कर चुका हूँ, जा चुका हूँ, मीटिंग कर चुकी हूँ। वो कमिश्नर नगर निगम, कलेक्टर भोपाल और SP भोपाल बहुत सहयोग कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक सहयोग DRM साहब का कम मिल रहा था, लेकिन आज की मीटिंग में वो भी आए और उन्होंने ये कहा, वायदा किया कि जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। उनसे कहा कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाओ, कुछ व्यवस्था दो, निज़ामुद्दीन जाने के लिए गाड़ी दो उस दिन। तो उन्होंने प्रॉमिस किया हो कि लेटर लिख के देंगे और कमलनाथ जी भी खुद रेलवे मिनिस्टर साहब से बात करके उनसे कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि साफ सफाई अच्छी होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। बंगाल हुकूमत ने खारजी मदारिस के लिए इमदादी स्कीम का ऐलान किया है। बगैर किसी सरकारी शराइत के हुकूमत खारजी मदारिस को 50 लाख से 2 करोड़ रुपए का फंड फराहम करेगी। बंगाल में 613 सरकारी मदारिस हैं जहां असातिज़ा की कमी बड़ा मसला है। मदरसा सर्विस कमीशन और असातिज़ा की बहाली के मसले पर हुकूमत को कानूनी चाराजोई का भी सामना है, जबकि गैर सरकारी मदारिस को मंजूरी देने के मामले में हुकूमत को एहतजाज का भी सामना है। ताहम इन तमाम मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत ने रियासत के खारजी मदारिस को सरकारी स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने का फैसला किया, जिसका मदरसा इंतज़ामिया ने खैर मकदम किया है। উপরে একটা মডেল স্কিম আছে, 50 লক্ষের উপরে গেলে 1 কোটি 1.5 কোটি 2 কোটি টাকা পর্যন্ত একটা স্কিম আছে। যে যেম স্কিম করছে, যেম জায়গা পরিমাণের উপর যে স্কিম করছে আমরা সেইভাবে फंड देंगे तो उसका कंडीशन देखना होगा, किस कंडीशन से वो देंगे। क्या उसमें उनकी कोई इजारादारी रहेगी या उसमें कोई दखल अंदाजी का मामला होगा। अगर ये सब नहीं है तब तो ठीक है, एक रकम इमदाद, भाई सबसे इमदाद लेते हैं खारजी मदरसे वाले, गवर्नमेंट इमदाद देगी तो गवर्नमेंट से मिल लेंगे, कोई हर्ज नहीं। चंदों और अतियात पर चलने वाले खारजी मदारिस के लिए हुकूमत ने पहली बार बंगाल हुकूमत ने इमदादी स्कीम का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्कीम का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब सरकारी मदारिस ही क्राइसिस का शिकार है और इन सरकारी मदारिस को लेकर हुकूमत को कई ऐसे इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने खारजी मदारिस के लिए इमदादी स्कीम तो बनाई, लेकिन अब देखना यह है कि ये इमदादी स्कीम मदारिस को कितना फ़ायदा पहुंचाती है या ये स्कीम सियासी फ़ायदा उठाने का ज़रिया बनती है। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बंगाल के मुर्शिदाबाद के 5 मजदूरों की कश्मीर में हुई हलाकत पर रियासत भर में सोग का माहौल देखा जा रहा है। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला मरकज़ी वज़ीर बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। वहीं कांग्रेस के MP अधीर रंजन चौधरी ने मुतासरीन के साथ मुलाकात कर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया और इमाम ईदेन कारी फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुतासरीन की फैमिली के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया। कश्मीर में जो मुर्शिदाबाद के मजदूरों का कत्ल हुआ है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात हुई है और इंतहाई गमनाक है, जिससे पूरा बंगाल मगमूम हो गया है। तो ममता हुकूमत ने, जैसा कि हमने सुना है कि उन्होंने कोई ऐलान किया है 5 लाख रुपए का, तो खैर वो तो वक्ती तौर पर इमदाद है जो हुकूमत देगी उनको, लेकिन उनके आगे जो फैमिली है उनके रोज़ी रोज़गार के लिए भी हुकूमत को चाहिए, क्योंकि वो सब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। तो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए आगे का भी बंदोबस्त करे, कम से कम उनमें ख़ानदान में से किसी एक को नौकरी दी जाए और उनके लिए मुलाजमत का बंदोबस्त किया जाए। रियासत में सफ़र हज 2020 के लिए दरख्वास्त का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस साल हज का फॉर्म ऑनलाइन होने की वजह से आज़मीन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हज के लिए मतलूब
तमाम तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात भी खुद ही अपलोड करना होगा और ऐसी सूरत हाल में बहुत से लोग हज के लिए दरख्वास्त देने के काबिल नहीं हैं, जिसकी वजह से इस साल आज़मीन हज की तादाद में कमी आ गई है। कभी 17,000 आज़मीन हज फॉर्म दाखिल करते थे, मगर इस साल अब तक सिर्फ 3,000 लोगों ने ही हज का फॉर्म दाखिल किया है। हज कमेटी आज़मीन की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज फॉर्म दाखिल कर सकें। गत वर्षों की तुलना में यदि हम देखें तो थोड़ी सी गति कम है। इसको सभी लोग समझ भी सकते हैं। उसके कई कारण होंगे, आर्थिक हो सकता है या कोई दूसरा कारण है। अभी तक उस पे स्टेट हज कमेटी के द्वारा कोई विशेष अध्ययन तो नहीं किया गया है, लेकिन 3,170 जो है वो आवेदनकर्ताओं ने आज दोपहर तक जो है आवेदन किया है, जिसमें से 1,032 तक कवर नंबर जारी कर दिए गए। यानी अगर हम लोगों की बात करें तो 2,590 हाजियों को जो है वो कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं और लगभग 300 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आवेदन में या तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए हैं या कोई अन्य तकनीकी समस्या उनमें है। हज यात्रा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस साल आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ इस बार डॉक्यूमेंट्स भी खुद ही आवेदकों को ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इस बार अभी तक जो कुल आवेदन हुए हैं उनको देखा जाए तो 3,000 के करीब कुल आवेदक आए हैं। 1,000 के करीब कवर नंबर जारी किए जा सके हैं। पिछले साल 10,700 आवेदक आए थे। अभी आवेदन में 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में हज कमेटी की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए और उनके लिए प्रक्रिया आसान बनाई जाए ताकि वक्त रहते लोग हज यात्रा 2020 के लिए आसानी से आवेदन कर सकें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और वहीं अजमेर में आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की अहम मीटिंग मुनक़्क़द की गई। इस मीटिंग की सदारत सैयद ज़ैनुल आबिदीन खान ने की। मीटिंग में मुल्क की सभी दरगाहों के सज्जादा नशीदों ने शिरकत की। मीटिंग में कई पहलुओं पर गौर व खौज किया गया। खासतौर पर दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि पिछले दिनों दरगाह दीवान के बेटे और काउंसिल के सदर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की क़यादत में सभी दरगाहों के सरबराहों का एक वफ़द कश्मीर जाकर वहाँ के ज़मीनी हालात का जायज़ा ले चुका है, वहाँ के लोगों से बातचीत की है। इस सिलसिले में काउंसिल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। डेलीगेशन कश्मीर गया था, वहाँ से वापसी के बाद में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके आज मेरे को सबमिट की है, इसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज़ किए हैं उसको मैं हुकूमत वक्त तक पहुँचाऊँगा ताकि वहाँ जो गलतफहमी हैं वो किसी तरह से हुकूमत की तरफ से दूर हो सकें और वहाँ के लोग जो हैं असलियत से वाबस्ता हो सकें। Here one point I want to make it clear for all, we went to Srinagar on the direction of Diwan Sahab with full agreement of all the AISSC members. Our purpose was visit to study the ground reality over there and the sea and the so-called problem being faced by the people of Kashmir. Our visit was purely a caravan of peace for the people of Kashmir. Our primary object is to serve a link and bridge between the people of Jammu and Kashmir and the future development of Kashmir. करतारपुर राहदरी पर पाकिस्तान के जरिए हर एक अकीदतमंद से $20 वसूल करने की चौतरफा तनकीद हो रही है। अजमेर में ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल की मीटिंग में भी इस मामले में पाकिस्तान की कड़ी नुक्ताचीनी की गई। और हमारी काउंसिल की तरफ से मैं इसकी बाकायदा कंडेम करता हूँ इन बातों को, क्योंकि किसी भी मजहबी इदारे पे या धार्मिक स्थल पे किसी को चार्जेस नहीं रखने चाहिए और ये जो चार्जेस रखे गए हैं ये इंटेंशनली रखे गए हैं पाकिस्तान के जरिए, जो उनकी सोच को दुनिया के सामने दिखाता है कि वो कैसी सोच रखते हैं। इस्लाम सबका अदब करता है, सबको सम्मान की बात करता है, सबसे मोहब्बत की बात करता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के मजहबी मामलात में उनका एहतराम करें और हर इंसान की मजहबी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स का एहतराम करें। इस तरह की ये हरकत करके हम लोग एक दुनिया को गलत मैसेज दे रहे हैं। खास तो इस्लामिक मूड होने के बाद में अगर ऐसी हरकतें की जाती हैं तो वो बाकायदा मैं समझता हूँ कि बहुत नाज़ेबा चीज़ें हैं।
تلنگانہ سے خبر ہے جہاں تلنگانہ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کا آج 26واں دن رہا۔ حکومت کے سخت موقف سے مایوس ہو کر اب تک 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ اب بھی 75% بسیں سڑکوں سے غائب ہیں اور دیہی علاقوں کے علاوہ ریاست کے اضلاع میں عوام کو شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات مکمل معمول پر ہیں۔ تلنگانہ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے عوام کی دقتیں کم نہیں ہو رہی اور جہاں لوگ پریشان ہیں انہوں نے نیوز 18 اردو کے ساتھ اپنی پریشانیاں بھی ساجھا کی ہیں۔ ہمارے نمائندے انیس الرحمان نے ان سے خاص بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ریاست کی شہر یعنی لائف لائن سمجھا جانے والی آرٹیسی کی اسٹرائک جاری ہے، ملازمین اسٹرائک پر ہیں اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ عوام ہیں۔ عوام اس اسٹرائک کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم لوگ آج ہیں نامپلی میں، اور نامپلی کا بس سٹاپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر عوام سے ہم بات کریں گے۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بلارم جا رہا ہوں، بلارم۔ آپ کو معلوم ہے آرٹیسی کی اسٹرائک جاری؟ جی ہاں، اسٹرائک چل رہی، معلوم ہے اسٹرائک چل رہا۔ بلارم سے یہاں پر کیسا ہے؟ ایسے بس ہے، ایک دو کیا بس چل رہے، وہ بس میں جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب یہ جو اسٹرائک چل رہی ہے اس میں کس کا قصور ہے؟ کس کا؟ وہ تو آرٹیسی والے ان کا مانگ جو ہے وہ برابر مانگ رہے، کورٹ بھی مینجمنٹ کو دبا رہے، وہ امپلائز کریکٹ ہے بول کے کورٹ بھی ان کے فیور میں ہے، امپلائز کے فیور میں۔ گورنمنٹ ایسا نہیں کرنا تھا، ان کا حق ہے، یونین پہلے سے ہے، رشیا گورنمنٹ لینن گورنمنٹ کے ٹائم سے یونین تھا، جب سے کرے ہو لیبر ایکٹیو ان کا ہی تھا رشیا گورنمنٹ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب یہ جو آپ بول رہے ہیں گورنمنٹ کی غلطی ہے، تو یہ جو اسٹرائک چل رہی ہے اس سے پبلک کتنا، عام آدمی کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے؟ بہت سفر ہو رہا، پبلک سفر ہو رہا، گورنمنٹ کے جو منڈپانا ہے نا ان کے طرف سے پبلک سفر ہو رہا۔ کون سا فیصلہ آ رہا پار کرنا، کورٹ بھی بول رہے ہو لوگ کو، مینجمنٹ کو تھوڑا بہت تو پرابلم آ رہا ہے، پھر بھی چل رہا ہے، کیسا جانا ہے نا، کیسا بھی پکڑ کے جاتے رہتے۔ آپ کدھر سے آئے صاحب؟ کہاں سے آئے؟ ادھر ہی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ کون سے اسٹریٹ سے آئے؟ میر پیٹ سے آئے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی پنجاگٹا جا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ بس کے لیے ٹھہرے، ویٹ کر رہا ہوں، میں پاس ہے نا اسی لیے۔ میں دکشنر سے آئے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ لگ رہا، ابھی تک بس بھی نہیں آئے ہیں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں سکندرآباد جانا ہے۔ تو آپ روز کمیوٹ کرتے ہیں بس سے؟ ہاں، بس میں روز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 25 دن ہو گئے، آج 26 ڈے۔ وہی پر پورا پبلک پہ ایک پرابلم ہوتا ہے۔ تو آپ کیا بولیں گے گورنمنٹ کو، کیا بولیں گے آپ ہمارے؟ یہاں پر جلدی ہو جاتا تو جلدی ہو جاتا، ختم کرتے تو ہو جاتا، ختم نہیں کرتے پبلک کو پرابلم کرتے، کیا کر رہا ہے۔ روز جاتے ہم لوگ، روز اسٹیشن جاتے، ادھر سے صنعت نگر جاتے، ادھر سے ادھر آنا پڑتا، ادھر آفس ہے، ادھر آ کے ادھر جانا پڑتا، لیکن بسا نہیں ہے۔ آٹو میں جائیں گے بولے تو آٹو بہت ریٹ بول رہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے مسافرین پریشان ہیں، آرٹیسی کی اسٹرائک جاری ہے، گورنمنٹ اپنے ضد پر اڑی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، عوام ہیں۔ کیمرامین ایڈون کے ساتھ میں انیس الرحمان، نیوز 18 حیدرآباد۔ آج اردو کے معروف ادیب خواجہ احمد فاروقی کا یوم پیدائش ہے۔ وہ مراد آباد کے ایک معزز گھرانے میں 30 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو ادب میں اپنی الگ شناخت قائم کی۔ تو آپ دیکھیے نیوز 18 اردو کی ان کی حیات و خدمات پر ایک خاص رپورٹ۔ مجھے اجازت دیں، آداب۔ خواجہ احمد فاروقی اتر پردیش میں ضلع مراد آباد کے بچراؤں قصبے میں 30 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے۔ علاقہ کے ایک ذی علم اور معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم مراد آباد میں ہی حاصل کی۔ میرٹھ جا کر انگریزی میں BA کیا۔ لکھنے پڑھنے اور حصول علم کی ایسی تڑپ دل میں تھی کہ دیر رات تک کورس سے باہر کی کتابیں بآواز پڑھتے رہتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ BA کے بعد انگریزی کے علاوہ فارسی میں اور پھر اردو و عربی میں بھی MA کیا۔ اس دوران ادبی موضوعات پر تحقیقی تنقیدی مضامین لکھتے رہے جو نگار، ہمایوں، عالمگیر اور جامعہ جیسے اپنے وقت کے مشہور ترین باوقار رسالوں میں شائع ہوئے۔ 3 کتابیں بھی لکھی، ادبی تنقیدیں، میر تقی میر اور تاریخ مکاتیب اردو۔
लेकिन तीनों किताबों के मुसव्वदे 1947 के हंगामों की नजर हो गए, जिसका ख्वाजा साहब को बहुत सदमा रहा। ख्वाजा अहमद फारूकी का पहला बड़ा कारनामा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू का क़याम। उनकी सरबराही में ये बरसगीर की तमाम यूनिवर्सिटियों का सबसे बावकार उर्दू शोबा बनकर उभरा। यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही उन्होंने 1953 में PhD की। तहकीक व तनकीद में उन्होंने वो काम किए जो उनसे पहले नहीं हुए थे। इनमें वाक़यात करबला से मुतल्लिक करबल कथा की बाज़याफ्त भी शामिल है, जिसका मुकदमा फिरहंग और हवाशी लिखकर उन्होंने अदब में बेशबहा इजाफा किया। इन किताबों में मकतूबात उर्दू का अदबी व तारीखी इर्तिका, मीर तकी मीर और शायरी और ज़ौक़ जुस्तजू भी शामिल है, जिन्हें 1947 में ज़ाया होने वाले किताबी मुसव्वदों की तलाफी कहा जा सकता है। इनके अलावा 1857 की जंग आज़ादी के एक रोजनामचे खदंग गदर, दहली उर्दू अखबार, उर्दू में वहाबी अदब, मिर्जा शौक लखनवी और दीगर मौज़ूआत पर उनकी किताबें और तवील मकाले शाया हो चुके हैं। उम्र रायगा के उन्वान से उन्होंने आप बीती भी तहरीर की। ख्वाजा साहब की कद्र व मंजिलत पूरी दुनिया में थी। लंदन यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, अमेरिका के अलावा मॉस्को, ताशकंद, बर्लिन, म्यूनिख, लाइडन वगैरह की यूनिवर्सिटियों के मेहमान प्रोफेसर थे। इल्म की तलाश उन्हें हॉलैंड, यूनान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ईरान, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, जापान, कनाडा और श्रीलंका तक ले गई, जहां वो अदब के खजाने ढूंढते रहे। ख्वाजा साहब को कई अदबी एजाज दिए गए, जिनमें साहित्य अकादमी अवार्ड भी शामिल है। 31 दिसंबर 1995 को ख्वाजा अहमद फारूकी का इंतकाल हो गया और अपने पीछे वो इल्म अदब का जबरदस्त खजाना छोड़ गए।